Avinash Ananda is an internationally renowned leadership advisor, happiness strategist, motivational speaker, master behavioral trainer, business coach, management consultant, conflict resolution expert, crisis counselor, author, executive mentor, alignment alchemist, and cultural catalyst. Acknowledged by the media and professionals as leadership and happiness guru, honored with the title of one of the 51 most fabulous global happiness leaders by the World HRD Congress, and with the recognition of being one of the 100 inspirational leaders of India. Awarded by White Page International, Avinash has coached corporate executives at all levels of management from 250 companies across 15 industries, including global brands such as Microsoft, Google, Marriott, LG, Cognizant, Capgemini, Byju's, and Amazon. He has personally mentored over 400 leaders and trainers and has also trained over 5 lakh people from all walks of life. Hi, my name is Avinash Ananda. I teach leadership and happiness to over 250 companies in 25 countries. I've trained over 500,000 people face to face. Also, I've trained over 1 million people online on various aspects of behavioral sciences. So, anyone who wants to be happy in life, anyone who wants to be a leader of their own life and live life on their own terms, that's what I teach. What the trick you apply to be happy ourselves and other people's? There's no trick that I apply. There's a system. The way that I suggest that people be happy is that people navigate through the challenges of life. See, दुनिया में जिंदगी में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं. इन दिक्कतों का सामना करना और उससे आगे बढ़ना, ये जो काबिलियत है, ये लोगों में होनी चाहिए. So I teach people how to have the skills. So there are 3 things: there's mindsets, skill sets, and tool sets. उसको हम कहते हैं will, skill, and thrill. If you know how to do this, you'll be able to handle anything that comes to you in life. Because life is not life without problems. Life is not life without challenges. It's about how you handle those challenges. How to be a kamal in the kitchen. How to be a lotus in the muddy pond. That's the idea. And that's what I teach. And I have a system and a framework for teaching that. It's called meta-mind alignment. How should we respond to the situation? How can we bounce back? See, समुद्र की लहरें होती है ना, कभी खुशी कभी गम. Sometimes happiness, sometimes sadness. But what is important is the depth of the ocean. Depth of the ocean जो अंदर जो होता है, जो ताकत हमारे अंदर होती है, और हम सब में वो ताकत है. मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, I want to share with you a संस्कृत श्लोक. आमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास तत्र दुर्लभा. Let me explain what that means. Amantram Aksharanasti means there is not a single alphabet from which a mantra cannot be made. यानी कि ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे एक मंत्र नहीं बनाया जा सके. Amantram Aksharanasti. Nasti Mulam Alashudam means that there is not a single root of a tree. ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं जहाँ पे हम जिसमें से हम कुछ औषध नहीं बना सके. There is not a single root of a tree or plant of a tree from which we cannot make a medicinal herb according to Ayurveda. Ayurveda को माना जाता है 5th वेद. 4 वेद होते हैं ना, उसमें से 5वां वेद आयुर्वेद को माना जाता है. तो there is not a single root of a tree from which a medicinal herb cannot be made. अयोग्य पुरुषो नास्ति. There is not a single individual who does not have the potential of greatness. ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें योग्यता नहीं हो. योजिका तत्र दुर्लभ का मतलब ये है कि ऐसा इंसान मिलना बहुत दुर्लभ है और नायाब है. It's very rare to get a human being who is able to make the mantra out of the akshar, who is able to make the medicinal herb out of the root. It's very difficult to find the man who is able to get the greatness out of every individual. इंसान में जो योग्यता है, उसमें जो ग्रेटनेस है, उसको निकालने वाला जो है वो बहुत मुश्किल है मिलना. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे गुरु को आप ढूंढिए. 2 चीजें हैं ना जी, एक है इंसान और उसका मैसेज, और दूसरा है मार्केटिंग. सो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है और पैकेजिंग है.
ये इंसान जो आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट है, ये सब जो है ये पैकेजिंग है, दोनों जरूरी है। लेकिन जो मैं मानता हूं वो ये है कि मैसेज जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो मेरा मैसेज ये है कि हर इंसान को अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं कि वो किसी और पे वो निर्भर हो। आत्मनिर्भरता जो मोदी जी कहते हैं वो मैं बिल्कुल ही इंडिविजुअल बेसिस पे ले रहा हूं, कि हम अपने लाइफ को ये हम ये ना देखें कि वो गलत क्या कर रहा है, क्योंकि अगर हम किसी के भी प्रति अगर हम उंगली हम ये पॉइंट कर रहे हैं तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये 3 उंगली जो है वो हमारी तरफ पॉइंट कर रही है। तो अपने अंदर देखें, अपने भीतर देखें कि हमको क्या करना चाहिए बदलने के लिए, बिकॉज लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। लाइफ जो है वो एक आईने की तरह है। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना आपको चाहिए, अगर आपके पास वो खुशी नहीं है जो आपको चाहिए, इसका मतलब ये है सिंपल कि आपको अपने अंदर, अपने भीतर कुछ बदलना है ताकि लाइफ आपकी वही हो जो आप हो, जो गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू बी। तो ये मेरा मैसेज है और मेरा मानना ये है कि आप हमारा मैसेज जो है वो ज्यादा जरूरी है मार्केटिंग से, कि कितने व्यूअर्स है, कितने वो है, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मैसेज क्या है और क्या वो सच है और क्या वो लोगों का भला करेगा। सर आपको क्या लगता है कि आज के जनरेशन में ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? जी मुझे ये लगता है कि आज के डेट में ज्यादा डिप्रेशन में लोग इसलिए जाते हैं 2-3 वजह से, और 2-3 वजह जो है मैं बताना चाहता हूँ, 3 वजह बताना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि लोगों का हालात जो है, लोगों की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो मैन इज अ सोशल एनिमल, और जब से कोविड आया है लोग क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को आपस में मिलजुलना अच्छा लगता है, लोगों को बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन ये हालात ऐसी हो गई है कि वी हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें ये एक कारण है, मैन इज सोशल बट वी हैव टू बी सोशल डिस्टेंस्ड, ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि लोगों को अपने ही माइंड को मास्टर या कंट्रोल करना आता नहीं है। लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं पढ़ते, माइंड मास्टरी नहीं पढ़ते। लोगों को अपना माइंड को अपने काबू में करना वो पता नहीं है, ये बहुत जरूरी है। इमोशनल, इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने सारे होते हैं। तो एक है सोशल, दूसरा है मेंटल हेल्थ, और तीसरा कारण जो मैं मानता हूं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है वो ये है कि लोगों को ये इजी हैक्स पता नहीं है। हैक्स जो कहते हैं वो है टेक्निक कि वो किस तरह से इमीडिएटली जब नीचे जाए तो ऊपर आ जाए, बाउंस बैक करे। वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, खुद पे वो आत्मनिर्भरता नहीं होती है कि हम कैसे वापस आ जाए, हम अपने माइंड के लीडर कैसे बने, हम अपने लाइफ के लीडर कैसे बने, वो किसी ने सिखाया नहीं। सर आपने कई सिचुएशन को देखा है, फिलहाल के लिए अगर बात करें तो एक ऐसा समय था कि सब कुछ लाइफ नॉर्मल चल रही थी, अचानक पेंडेमिक आता है जी। सब कुछ बदल जाता है, जी। फिर अब एक बार फिर से लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जी। तो आगे आपका ऐसा क्या विजन होगा, क्या चीज़ लेके चलेंगे? पब्लिक की, आम जनता की जिम्मेदारी आप पे भी है, तो कुछ नया कुछ क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँ, मैं खुद? हाँ। देखिए मैं क्या करूँगा उसके पहले ये बताना जरूरी कि मैं क्या कर रहा था। इसके पहले मैं क्या कर रहा था वो सिर्फ ये था कि मैं कंपनीज के साथ काम कर रहा था। तो मेरे 250 कंपनी, आई हैव अबाउट 250 कंपनीज with whom who are my clients. I work with executives, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, अमेजॉन, मैरियट होटल, ताज होटल, कोका कोला, अलग अलग कंपनियों के साथ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वहां पे काम करते हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा था कि, और मेरी टीम के साथ, मेरे पास एक टीम है, 40 से ज्यादा बिहेवियरल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये सब लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में घूम रहे थे हर जगह पे, और उनके साथ वो काम कर रहे थे कि वो कैसे
अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसकी जो अपनी क्षमता वो बढ़ाएं ताकि वो काम अच्छा करें, ज्यादा बेहतर करें. दे शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. सो आई वाज वर्किंग विद दिस पीपल, बट देन मैंने रियलाइज किया जब पेंडेमिक हुआ कि पहले तो मेरा पूरा यूरोप का बिजनेस फट हो गया. 80% मेरा बिजनेस यूरोप और अमेरिका में हो रहा था. मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाया तो क्या बिजनेस करूंगा मैं. तो B2B बिजनेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मेरा बिजनेस चल रहा था. मैंने B2C शुरू किया. B2C यानी कि मैं आज भी एक स्टार्टअप कर रहा हूं जहां पे मेरा सारा नॉलेज जो है उसको मैं डिजिटाइज कर रहा हूं. ये सारी चीजें मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत नहीं है. ये मैं कंप्यूटर कुछ नहीं समझता. हाँ, मैं सिर्फ इंसान समझता हूँ, दिमाग समझता हूँ, मन समझता हूँ. तो मैंने अभी इस पे काम किया है. मेरी पूरी टीम है, लोग हैं इस पे काम कर रहे हैं कि ये पूरा नॉलेज जो है वो डिजिटाइज करें कि हाउ टू बी हैप्पी. इंजीनियर्स को हम सिखा रहे हैं हैप्पीनेस. इंजीनियर्स बोलते हैं इसका प्रोसेस क्या है, क्या हैप्पीनेस डेफिनेट है, उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं हमारे पास. हम ये चाहते हैं कि आम इंसान के पास ये पहुंचे ये इंफॉर्मेशन कि खुद की लाइफ को आप हैप्पी कैसे बनाया जाए, आप अपने आप को खुश कैसे करें. और ये खुशी जो है ये लॉन्ग टर्म खुशी होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म जो है. तो हाउ टू हैव सस्टेन्ड हैप्पीनेस, इसका एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं और एक कंपनी हम शुरू कर रहे हैं. आम जनता तक पहुंचने के लिए क्या आपका तरीका होगा, कैसे पहुंचेंगे आप? जी, एक ही तरीका है आज के डेट में, वो है कंप्यूटर्स, वो है ऑनलाइन. आज के डेट में और कोई तरीका नहीं है. हम डिजिटल मीडिया आपके अकॉर्डिंग क्या है? डिजिटल मीडिया तो हम उसमें तो बिल्कुल नादान हैं, हम उसको बिल्कुल जानते नहीं है. हाँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर कुछ हमारे पास है जो वैल्यू का हो, जिससे कुछ लोगों का फायदा हो, वो इमीडिएटली लोग लेते हैं. और हमने सुना है कि कुछ चीजें ऐसी जो है वो वायरल हो जाती है. तो अगर हमारा सोच बहुत सिंपल है जी. अगर कोरोना वायरल हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, तो खुशी वायरस के लिए हो सकती है. हाँ? ये खुशी जो है इसको वायरल बनाना ये हमारी जिंदगी का मिशन है कि मेक हैप्पीनेस गो वायरल. जिस तरीके से बड़े कॉमेडियन एक काम करते हैं लोगों को हंसाने का, लेकिन आप बिल्कुल यूनिक काम कर रहे हैं. आप कॉमेडी नहीं करते, आप अलग तरीके से लोगों के मन के अंदर, चाहे वो कितना भी डिप्रेशन में, उसको हंसी लेके आ रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है. आपका ये जो कहना है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काबिलियत को पहचानना काबिलियत से बड़ी काबिलियत होती है. तो ये मैं कह रहा हूं आपसे कि कॉमेडी जो है वो क्रोसिन की तरह है, या क्या बोलते हैं उसको, डोलो खाते हैं लोग. शॉर्ट टर्म रिलीफ. हाँ जी, हाँ, सुपरफिशियल. हाँ, तो उसके डीप अगर जाएंगे, आप लीजिए आयुर्वेदा, आप लीजिए जो होम्योपैथी है, जो नेचुरोपैथी है, जो इतने सालों से आयुर्वेदा 5000 साल से चल रहा है अपने देश में, हमारे देश में. तो अगर जड़ तक जाना हो तो वो ये है कि आप उसके अंदर एक जनरेटर बिठाओ, हर इंसान के अंदर एनर्जी बोलते हैं ना, तो उसको ऐसे NRG अगर बोला जाए तो नेचुरल रिस्पॉन्सिव जनरेटर. यानी कि खुद के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, और आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप किसी मोटिवेटर के पास ना जाए. क्या मोटिवेटर स्पीकर इतने सारे होते हैं. तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके खुद के अंदर ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप जब भी आप डाउन हो, आप अपने आप को अप कर दें, एनर्जी आप अपनी बढ़ाएं. ये हम चाहते हैं. मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा जो विजन है इस प्लेनेट का, वो सिर्फ ये है कि 8 बिलियन लोग जो है इस प्लेनेट के वो खुश रहे. ये मेरा विजन है. और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब ये 8 बिलियन लोग ये कुछ सिद्धांत, कुछ टेक्निक्स ऐसे सीखे. इसमें 3 चीजें हैं: विल, स्किल, थ्रिल. विल यानी कि माइंडसेट, अपना माइंड कुछ इस तरह से सिखाए, अपने काबू में लाए. स्किल यानी कि काबिलियत, अपनी काबिलियत जो है वो उसको बढ़ाए. थ्रिल यानी कि एग्जीक्यूशन यानी कि बहुत लोग हैं जो सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो स्ट्रेस से हटकर जो करना है वो करें, डिसिप्लिन. तो ये तीसरी चीज है, एग्जीक्यूशन, एक्शन. तो मन, काबिलियत और एक्शन, ये तीनों चीजों को अपने काबू में करके आगे बढ़े. और देखिए
कभी कभी खुशी कभी गम, करण जौहर ने कहा था, वो तो हमेशा होगा। गम कभी जाएगा नहीं अपने लाइफ से, लेकिन हमें ये आनी चाहिए, ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम गम से कितनी जल्दी बाउंस करें, वापस आ जाए और सबको संभाले, अपने आप को और दूसरों को। सर आपको नहीं लगता कि अभी जो आजकल के जो जनरेशन के हैं वो सात्विक से दूर होते जा रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल मन की बिल्कुल। शांति ना हो। 100%। और मन से मन और मन से मंत्र में क्या डिफरेंट है? हाय हाय, क्या सवाल है आपका। म से मन और म से मंत्र में क्या अंतर है? अंतर है, और ये दोनों मिल गई एक पहले शांति होता था। कहाँ से आएगा? ओके, वेरी गुड, सुपर। जी देखिए कि मैं ये मानता हूँ, ये मेरा अनुभव है और जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है लाइफ के बारे में। मैं हमारा अध्ययन हुआ है, we have done research on 450 different sources: religion, neurosciences, management, psychology, positive psychology, history, social sciences, ये सारे फील्ड्स में हमने रिसर्च किया है। और ये रिसर्च से हमने ये देखा है, हमारा रिसर्च का जो लक्ष्य था, जो पर्पस था, वो ये देखना था कि इंसान खुशी कैसे पा सकता है, लॉन्ग टर्म खुशी। और हमने ये देखा कि इंसान जो है खुशी जो पा सकता है वो अपने निर्णय से पा सकता है। डिसीजंस डिटरमिन डेस्टिनी। और जो निर्णय हम लेते हैं उससे हम कर्म करते हैं। हर कर्म के पहले निर्णय होता है, तो कर्म जो होता है वो है एक्शन। तो हम जो कहते हैं वो हमारे शास्त्रों में कहते हैं ये कि कर्मा इज डेस्टिनी। ओके, कर्मा लोग समझते हैं अरे कर्म अगर कर्म की बात है तो वो डेस्टिनी की बात, लेकिन कर्म जो है वो एक्शन है, वो हमारे नियंत्रण में है। तो हम अगर निर्णय करेंगे कि हम सही कर्म करें, तभी तो हमारा डेस्टिनी सही होगा, तभी तो हमारा जो जिंदगी है वो सही होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो कर्म करें वो सही हो। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितना हम दूर जाएंगे उस सही कर्म करने से, उतना ही हमें गलत रिजल्ट मिलेगा। एक्शन गिव्स रिजल्ट, वेरी सिंपल। इफ यू डू रॉन्ग एक्शन यू गेट रॉन्ग रिजल्ट। और दूसरी बात जो आपने कहा मन और मंत्र के बारे में, मन को काबू करने का एक यंत्र है मंत्र। One tool to control the mind is mantra. Mantra is affirmation. Mantra is एक वाक्य जिसको आप दोहराएंगे। मंत्र को हम दोहराते हैं ना, this repetition. But repetition with emotion as an incantation will create a change in your mind. For example, मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरे साथ ये हुआ था, मैं कहानी कहता हूँ। मैं 10 साल का था, मैंने ये कहा, मैंने अपने दादी से कहा कि अरे मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डोंट, ऐसा मत कहो, डोंट से दैट। मैंने कहा आई कांट डू इट। उन्होंने कहा डोंट से दैट, डोंट, ऐसा मत कहो। मैंने कहा क्यों? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में 33 करोड़ देवी देवता है। She said in the universe, in the cosmos, according to Hindu belief, there are 33 crore gods and goddesses, and whenever they say something, whenever you say something, आप जब भी कुछ कहोगे, they will say तथास्तु, तथास्तु meaning it will happen. I said, oh my God, मैं अकेला हूँ, 33 करोड़ देवी देवता है, 33 goddesses against me, how can I stand a chance? So ever since that day, I started saying good things, and good things started happening. क्योंकि जब भी मैं कहता आई कैन डू इट, मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये, तो वो कहते तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और ये होता रहा। एंड व्हेनेवर थिंग्स डिड नॉट हैपन, आई रियलाइज दैट आई हैव टू लर्न समथिंग, मुझे कुछ सीखना है ताकि वो हो। तो ये जो मैं कहता हूँ वो है मंत्र। इफ आई रिपीट इट टू माई सेल्फ, बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। तो मंत्र जो है इट अफेक्ट्स द माइंड। तो मन को काबू करने के लिए और मन को सही दिशा में लेके जाने के लिए मंत्र की बहुत जरूरत होती है।